Hello students, in this video we will try to understand about grasslands. The question is, what is grassland? What is grasses first? On earth, if we classified according temperature and precipitation rate, we can observe that there are two regions. Where there is more rainfall, and where is the less rainfall. It means desert, and here forest. Desert and forest, and where the moderate precipitation rate and climatic condition in the middle side of there is the area of grassland. This area is of grassland. Grasses. This area is of grasses. Where temperature is not sufficient for growing up a large trees, and not less condition that soil become desert. On middle side of these two features land for grasses grow. Okay, grasses generally इस टाइप की होती है, मैं आपको बताता हूँ। वो हर एक प्लांट्स जो आपकी चारों तरफ दिख रहे हो, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, और उनके जो स्टेम्स हैं वो ज्वाइंट टाइप के हों। ठीक है, ऐसे ज्वाइंट टाइप के स्टेम्स हो, ठीक है। अगर स्टेम जो है स्टेम्स जो है ज्वाइंट वाले हो, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड ग्रास। अब यू कैन क्वेश्चन दैट व्हीट, गेहूं में भी आप देखेंगे क्या है, ज्वाइंट के साथ। तो गेहूं भी क्या, व्हीट क्या है, व्हीट इज आल्सो ए ग्रास। बैम्बू देखेंगे आप, बांस में भी देखेंगे ऐसे बना रहता है, तो बैम्बू भी इज ए ग्रास, लेकिन एक बहुत बड़ी ग्रास है। यानी बांस भी ग्रास है, गेहूं भी ग्रास है। तो ऐसे एरिया में क्या होता है, गेहूं की खेती या और खेती भी की जाती है, और अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे प्लांट्स भी रहते हैं। एक प्लेन एरिया रहता है, इसको ग्रास कहते हैं। अब दुनिया में ग्रास लैंड अलग अलग है, ठीक है। दुनिया में स्टूडेंट ग्रास लैंड्स जो है अलग अलग है, हर एक जगह जो कंडीशन जिस अकॉर्डिंग है वो से आते हैं। लेकिन हम ब्रॉडली अगर इफ वी क्लासिफाइड ब्रॉडली grasslands, if we classified the grassland on their spatial distribution, world distribution, तो फर्स्ट इज ट्रॉपिकल grassland, and second is temperate grassland. Tropical grassland, temperate grassland. We can classify grassland into two groups. First is tropical grassland and second is temperate grassland. One thing, if you know, this is our earth and this is equator. Equator 0 degree, you know, and in the north of equator on 23.5 degree north, tropic of Cancer, and in the south of equator, the 23.5 degree south, that is tropic of Capricorn. Between tropic of Cancer, from tropic of Cancer to tropic of Capricorn, this area is called tropical area, tropical zone. Actually you can take near about 30 degree to 30 degree north to 30 degree
generally it is believed that from 30 degree to 30 degree south, 30 degree north to 30 degree south latitude in between this area, and in this area grasslands grow. Some grass, only little grasslands are found because यहाँ पर precipitation rate और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर बहुत बड़े डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे अमेजन फॉरेस्ट वॉरेस्ट सब इसी एरिया में पाया जा रहा है। एंड इन द नॉर्थ 66 डिग्री 60.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्किल एंड हियर अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक circle. This area in north, this area in north and this area in south, it may from Tropic of Cancer to Arctic Circle and from Tropic of Capricorn to Antarctic Circle. This region is called temperate region, and grasses grown in this in both areas is called temperate grassland. ओके अब हम इसको समझने का प्रयास करें। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो कि अफ्रीका, जो कि दैट इज फाउंड इन अफ्रीका, यहीं पर हम बता दें ट्रॉपिकल अफ्रीका, इन अफ्रीका दे आर कॉल्ड सवाना, ओके, दिस इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, बट most of the grassland of the world are located in temperate zone. Most of the grassland of world are located in temperate zone, and they are called with different name in different continent. Okay, in Asia they are called steppes. In Asia steppes, and North America, डोनाल्ड ट्रंप वाला अमेरिका नहीं, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, ओके, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, नॉर्थ अमेरिका, दिस कॉल्ड प्रेरीज, ओके, स्टेपीज एंड प्रेरीज। तीसरा एशिया एंड यूरोप में वैसे है नहीं, लेकिन आप यूरोप में भी यूरेशिया समझ सकते हैं स्टेपीज। साउथ अफ्रीका में, इन साउथ अफ्रीका इट इज कॉल्ड वेल्ड्स, ठीक है, वेल्ड्स। ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड डाउन्स। grasses are called downs, okay. Pampas in South America, this is called pampas. Okay. So here student you can understand that these are grasslands. Most of the grassland, steppes, prairies, veld, downs, pampas, in different उसको मैप पे आप लोकेट कर लीजिएगा, तो ये इनका नाम है, ठीक है। और एक प्रकार के और ग्रासलैंड्स आप वेजिटेशन को अलग कर सकते हैं, जो हमारे अभी देखेंगे टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है, टुंड्रा वेजिटेशन जो बहुत बर्फीली एरियाज में रहते हैं, ठीक है, यानी इधर टुंड्रा वेजिटेशन इट मीन दे आर लोकेटेड इन cooled areas, ठीक है, cold areas in the high latitudinal area, they are located in high latitudinal areas. And desert vegetation,
डिजर्ट वेजिटेशन को हम क्या कर सकते हैं कि दे आर जनरली हॉट एंड ड्राई, दे रिसीव वेरी लेस रेनफॉल एंड कैक्टस और कुछ अदर प्लांट्स जो which need very less water that are called desert vegetation. Main purpose of this video was grassland. तो I hope all of you have understood. ये क्या है? अफ्रीका सवाना एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। एशिया में देखिए स्टेपीज कहते हैं, यूरोप में भी इसको स्टेपीज कहते हैं, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहते हैं, डाउन्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आगे हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड plant species is very necessary for human being. You know that for greedy selfishness of need of human being, we are cutting down a lot of forest, और जंगलों को हम साफ कर दे रहे हैं। जंगलों को जो प्रेजेंट फॉरेस्ट है इसको काट करके ख़त्म कर देना इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। दो टर्म्स हैं, उनको हमें यूज करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक होता है डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। ओके, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इन लार्ज रेट। ओके, अफॉरेस्टेशन माने planting a lot of trees on new patch of new land है, बात कर सकते हैं। न्यू लैंड। रिफॉरेस्ट माने replanting on deforested areas, replanting of trees, actually trees। देखिए हम कुछ मेजर को कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व, एफॉरेस्टेशन, लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज टू इंक्रीज अंडर द फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लाइफ and making law to and make legal process to control the deforestation, control overgrazing, and develop a strong technique to the controlling over forest fire। ओके, कई मेजर स्टेप्स हैं जो आप इसको and spread social awareness about Van Mahotsav and other programs which are about concern of forest and wildlife। तो ये चीज़ें हमें कंजर्वेशन के लिए कुछ मेथड को, कुछ अपने लोकल मेथड को और कुछ नेशनल लेवल के लिए मेथड को हमें अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, हम अपने स्तर पे भी कई तरीक़ों से योगदान दे सकते हैं। ठीक, कि हम जैसे कोई फॉरेस्ट की वो कीमती जो वुड्स हैं उनसे बनी हुई चीज़ों को कम यूज करें, या ऐसी जो रेयर स्पीसीज हैं प्लांट की उनको भी हम कम यूज करने का प्रयास करें। ओके स्टूडेंट,
हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ। थैंक यू।